عید کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، مویشی منڈیاں ہاٹ سپاٹ بن گئی۔ خریداری عروج پر شاہپور سنگیا کانا مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش ہے۔ شاہپور منڈی میں موٹے تازہ بیلوں کا راج، کاجل لگی آنکھوں والے بکروں کے چرچے بھی ہیں۔ عید کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، مویشی منڈیاں ہاٹ سپاٹ بن گئی جبکہ خریداری عروج پر ہے۔ شاہپور سنگیا کانا مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی توقیر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت بہت زیادہ رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ شاہپور کانجرا ماڈل مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بہت زیادہ ہے، جبکہ بیوپاری جو ہیں وہ اب پریشان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ قیمتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اب مجبور ہو گئے ہیں بیوپاری قیمتیں گرانے کے لیے، کیونکہ خریدار جو ہیں وہ اپنا من پسند جانور جو پسند کر رہے ہیں اس کی قیمت وہ نہیں لگا رہے جو بیوپاری ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے لوگ جو ہیں تھوڑے سے پریشان بھی ہیں، جبکہ یہ ہمارے ساتھ بیوپاری بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں فروخت کرنے کے لیے۔ یہ ان کا بکرا ہے۔ ساتھ جی کی حساب کتاب ہے منڈی کا؟ 155 منگتے پے کہنے پہ منڈی ڈگ گئی ہے، ریٹ تھلے آ گئے نے ہے، ریٹ تھلے آ گئے بہت ہے، کی وجہ ہے ریٹ تھلے آ؟ پتہ نہیں کی وجہ ہے جی۔ پہلے تسی ریٹ زیادہ لاندے؟ ہاں جی ہاں جی، کی مانگتے سی کہتے پہلے؟ 155 منگتے سی، 155 ہن کنے دا فائنل؟ 145 دا۔ 145 ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یہ سائز جس کا پونے 2 تک مانگ رہا تھا۔ چاچو کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاءاللہ جوڑی بڑی سونی چڑھی۔ ماشاءاللہ جی، کی مانگتے پہ اندر؟ اندر بہن مانگتے پہ 3.5 لاکھ۔ 3.5 لاکھ روپیہ تے کی موڈ ہے ویچن موچن ہے؟ بیچاں گے بھاجی انشاءاللہ، لیاندہ بیچن واسطے لیاندہ۔ منڈی کہندے ڈگے نے، ریٹ ڈگے نے؟ بھاجی ریٹ ڈگن والی گل کوئی نہیں، مسئلہ کہ مال تو مول والی وک رہا ہے، جیسا جانور ہے ویسے پیسے۔ اگر چھوٹا کوئی ہے تو تھوڑے پیسے نے، جہاں کوئی جانور خوبصورت ہے سونے پیسے نے۔ 3 لاکھ روپے ٹھیک ہے؟ کتنا مانگتے پہ ہو؟ 3.5 لاکھ۔ 3.5 لاکھ روپے جائز ہے؟ نہیں کوئی گھٹ بھی ہو جائے گا، وہ تو کوئی گاہ فائنل کتنا کرو گے؟ فائنل 280 میں دے دیں گے۔ 280 جو فائنل کر دو گے۔ دیکھیں جی 140 کا ایک بکرا انہوں نے لگایا ہے، اور یہ جوڑی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، ہائٹڈ جوڑی ہے۔ یہ بھی ایک پیچھے آن جو ساج جی ماشاءاللہ تہاڈی جوڑی بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ جی۔ کی ریٹ مانگ رہے ہو؟ جو ایسا 5 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ جی، بیچ کے نہیں جانا، واپس جانا ہے؟ نہیں بیچ کے جانا۔ ریٹ 5 لاکھ روپیہ زیادہ ہے۔ 3.5 لاکھ لگ گیا۔ 3.5 لاکھ کے تو بیچے کیوں نہیں؟ نہیں بیچے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ کچھ جوڑیاں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایکسٹرا آرڈنری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ منڈی کے اندر بیوپاری جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک دن باقی رہ گیا، اگر یہ نہ بکے تو واپس لے جانے پڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے توقیر، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ آفاق نذیر بھی موجود ہیں، مزید ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ جی آفاق، آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں موجود ہیں اس وقت، خریداروں کا کتنا رش دیکھ رہے ہیں، اور کیا بیوپاریوں کا ریٹ آج آخری دن ہے تو کیا ریٹ نیچے آیا ہے ان کا یا نہیں؟ بالکل جی، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ایک روز جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے۔ ایسے میں جو خریداروں کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہی ہے۔ اس وقت LDA سٹی مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں، جہاں پر رات گئے تک بھی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت خریداری میں مگن ہے۔ بہاؤ تاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے، بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر مختلف اضلاع سے جانور جو ہے وہ یہاں پر لائے گئے ہیں۔ خوبصورت سے خوبصورت جانور جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، البتہ جو قیمتیں ہیں وہ ابھی تک آسمان سے باتیں کرتی ہوئی جہاں پر دکھائی دے رہی تھی، وہیں پر ان میں جو ہے وہ معمولی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جہاں پر شہریوں کو جو ہے وہ سستے جانور کی تلاش ہے، خوبصورت جانور کی تلاش ہے، وہیں پر بیوپاریوں کی بھی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد جو جانور ہیں اپنے ان کو فروغ کر کے واپسی جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں کی طرف لوٹیں، شہروں کی طرف لوٹیں، اور اپنے عید جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں۔ ایسے میں جو بہت سے بیوپاری حضرات ہیں وہ اپنے باڑوں سے نکل کر جو ہے وہ روڈ پر آ چکے ہیں، تاکہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی وہ اپنا جانور جو ہے وہ فروغ کر سکیں اور یہاں سے جو ہے وہ اپنا ساز و سامان سمیٹ کر جو ہے وہ لوٹ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق نذیر اور توقیر اکرم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں تیزی، منڈی میں شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے پہنچ رہی ہے۔ بھاؤ تاؤ جاری، کوئی مبارکباد دے رہا ہے تو کوئی قربانی کا جانور ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔
सस्ते बकरे, मासूम दुम्बे और तगड़े ऊंट शाहपुर काजरा की खूबसूरती में इजाफा करने लगे। कीमतों से परेशान खरीदार कहते हैं कि इस साल कीमतें आसमान को छू रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि साल भर की मेहनत, अच्छी खुराक के बाद कीमत वसूल करना जरूरी है। पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट के सीईओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम का कहना है कि इस साल शहरियों और व्यापारियों को बेहतरीन इंतजाम दिए गए हैं। 200 CCTV कैमरास लगाए हैं और उनको इंटीग्रेट किया है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ। तो एवरी स्पॉट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड, उसको फिर हम इधर देख रहे हैं। और पहले जो पिछले सालों में ये 74 एकड़ के ऊपर सारा चटियल मैदान था, रेत मट्टी गट्टू जब इधर आके बंदे की बुरी हालत हो जाती थी, बारिश में इधर 2-2 फुट पानी होता था। अभी बड़ा अच्छा इधर एक अराउंड 6 बिलियन रुपीस का खर्चा हुआ है और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ये मंडी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी फैसिलिटेट हो गए हैं और इस दफा वाकई दे आर एंजॉयिंग दिस फैसिलिटी। शाहपुर काजना मंडी में मजीद रश बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तुकीर अकरम, सिटी 42। ईद की आमद के साथ ही बस वैगन अड्डों पर रश बढ़ गया। मीनार पाकिस्तान के करीब कामदारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। बस टर्मिनल्स पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है। ईद की आमद के साथ ही लाहौर के बस और वैगन अड्डों पर रश बढ़ गया। टिकट काउंटर के बाहर शहरी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों को टिकट के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने इजाफी किरायों की शिकायत करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। यहाँ किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल 5 रुपए महंगा होता है तो ये बसों वाला किराया दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ा जाता है। दूसरी बात है ना कि यहाँ जितने भी परदेश आप लोग देख रहे हो ईद की खुशी पर जा रहे हैं और अपने प्यारों बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आज इतना तकलीफ है। टिकट मिल गई थी और किराया में इस तरीके से इजाफा हुआ है कि पहले 800 था, अब 11 के करीब हो गया हुआ है। मीन्स के बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन किराया में इजाफा हुआ है। परदेसियों के चेहरों पर अपने प्यारों से मुलाकात की खुशी भी नुमाया दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद ईद अपनों के साथ मनाने का अलग ही मजा है। ईद की खुशियाँ मनाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ी एंजॉय करेंगे, बहुत मजे आएंगे। ईदों में जाएंगे, बड़ी एंजॉय बच्चों के साथ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे। कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि ईद के करीब मुसाफिरों की तादाद कई गुना बढ़ने से गाड़ियों में गुंजाइश कम पड़ जाती है। दिहाड़ी लगाने हम आए हैं, घर से बच्चे हैं छोटे छोटे, काम कोई नहीं है। क्या आपको बताएं, ये मुसाफिर हैं, इनसे हम किराया ज्यादा लेके हमारी पूरी नहीं डलेगी। हम कम ही लेते हैं, हम इनका साहस करते हैं, हम चार्ज कर रहे हैं इनसे। जो किराया गवर्नमेंट ने निकाला, इशू किया है, वो ही चार्ज कर रहे हैं। गाड़ियाँ कम है और सवारी बहुत ज्यादा है, 1-1, 2-2 गाड़ियाँ और 100-100, 150-150 बंदा है उस इलाके के जाने वाला। किराए भी बहुत ज्यादा हो गए, ईद की वजह से भी हो गए, कोई डीजल महंगे है, इस वजह से भी किराए ज्यादा हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान के करीब अड्डे पर ईद से कबल रश और गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन जैन आगा के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। सुई गैस कंपनी का ईद पर गैस शेड्यूल तैयार। तीनों रोज सार्फिन को 16 घंटे गैस फराहम की जाएगी। शहर समेत कंपनी के ज़ेरे इंतजाम तमाम अजला में प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी। पहले रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस दी जाएगी। दूसरे और तीसरे रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक गैस दी जाएगी। और यहाँ हमको बताएं कि पाकिस्तान की पहली शैडो पॉलिसी दस्तावेजात की रोनमाई 5 साल टैक्स पॉलिसी शैडो बजट पेश किया गया। हुकूमत सुपर टैक्स खत्म करे, प्राइवेट सेक्टर तरक्की करेगा तो नौकरियां मिलेंगी। FPCCI और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के अहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और पाकिस्तानियों की खुशहाली हमारा ख्वाब है। साबिक वफाकी निगरान वजीर डॉक्टर गौहर इजाज का कहना था कि गुज़िश्ता बरस से एक्सपोर्ट $30 बिलियन पर रुकी है, $80 अरब तक ले जाने का प्लान दिया है। कौम ने 2 साल में $60 अरब बैंकों में जमा करवाए और सूद लिया। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दें, 30 लाख से 10 करोड़ टैक्स पेयर्स करना होंगे, वरना मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान इस पोजीशन में खड़ा है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 साल बहुत मेहनत की है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी अचीव कर सके। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को लीड किया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम रोशन है, बल्कि हम एक कौम ऐसी बन के खड़े हो गए हैं कि अपना सर बुलंद करके आज हम पूरी दुनिया में खड़े। और ये सिर्फ किससे हुआ है? एक सोच, एक आदमी। आज हम इकोनॉमिकली भी आज पाकिस्तान को ये सोच दे रहे हैं। हम 5 साल में जो आज $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जिसकी वजह से आज हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम 0 ट्रेड डेफिसिट पे खड़े होंगे 5 साल में।
FPCCI लाहौर में पाकिस्तान की पहली शेडो पॉलिसी दस्तावेजात की तकरीब रहनुमाई में MS तनवीर का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आज तारीख बदलने जा रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने बेहतरीन काम किया। दुनिया की मजबूत मईशतें निजी शोबे की बेहतरी और तावन से बनती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक आज इसको अनवेल करने जा रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा ये जो फाइनेंशियल बजट है 2026-2027 का, हमारी UBGB टीम ने जब FPCCI को टेक ओवर किया 2.5 साल हो गए। मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट, हर एसोसिएशन, और मेरे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब अलहमदुलिल्लाह फेडरेशन संभालते हैं, इस्लामाबाद संभालते हैं, और ये एक टीम है। और साथ गौरजाज साहब जिस तरह से इसको लेके चले हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के CEO अहमद नवाज सुखेरा का कहना है कि डिफेंस के बजट में 35%, पेंशन में 23% इजाफा किया जाए। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डेट की रीप्रोफाइलिंग कर, हम कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों की वजह से फेडरल डेफिसिट आपका ड्रास्टिकली कम होगा और आपकी बोरोइंग और डेट सर्विसिंग कम होगी। तकरीब में FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख और रीजनल चेयरमैन जकी इजाज का कहना था कि शेडो बजट सिर्फ तजावीज नहीं, एक मुकम्मल मुआशी फ्रेमवर्क है। कैमरामैन राना अजहर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अद्वियात के नाम पर जहर बेचने का धंधा, जान बचाने वाली 4 अद्वियात के मुख्तलिफ बैच जाली और गैर मयारी करार निकले। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल ने अलर्ट जारी कर दिया। जान बचाने वाली 4 अद्वियात के मुख्तलिफ बैच जाली और गैर मयारी करार दे दिए गए। ड्रग टेस्टिंग लैब के तजिए में दर्दकुश टैबलेट ब्रेक्सिन का बैच लैब टेस्ट में जाली पाया गया। सोजिश और दर्द की दवा टैबलेट डेंजन DS का बैच भी जाली निकला। टैबलेट नोटोफ्लेक्स P का बैच भी लैब टेस्ट में जाली साबित हुआ। एंटीबायोटिक दवा टैबलेट नोवोडेट का बैच भी तजिए में जाली पाया गया। महकमे सेहत ने चारों अद्वियात के बैचेस का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की CT स्कैन मशीन खराब है। 1 माह से खराब CT स्कैन से मरीजों को शदीद परेशानी। CT स्कैन मशीन ईद की छुट्टियों में भी ठीक नहीं हो सकेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की CT स्कैन मशीन खराब, 1 माह से खराब CT स्कैन से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। CT स्कैन मशीन ईद की छुट्टियों में भी ठीक नहीं हो सकेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को 100% मुफ्त किताबें ना मिली। इंग्लिश उर्दू मीडियम कोर्स के बायस तलबा कुतब से महरूम। इंग्लिश मीडियम में दाखिल 6ठी से 10वीं जमात के तलबा बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर। किताबें 40% अंग्रेजी और 60% उर्दू में छापने से कमी हुई। सरकारी स्कूलों में किताबों की किल्लत का मसला शदीद हो गया। तलबा बाजार से महंगे दामों किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। 40% मुफ्त दरसी कुतुब अंग्रेजी मीडियम और 60% उर्दू मीडियम में छपवाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, कसूर, फैसलाबाद में इंग्लिश मीडियम कुतुब का फुकदान है। 80% तलबा अंग्रेजी मीडियम कोर्स पढ़ते हैं। पंजाब में इंग्लिश मीडियम में दाखिल 6ठी से 10वीं जमात के तलबा बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है, लेकिन तलबा को 100% मुफ्त किताबें नहीं मिल सकी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने पहले ही 6ठी से 10वीं जमात तक 50% तलबा के लिए किताबें छाप रखी हैं। इंग्लिश उर्दू मीडियम कोर्स छापने से हजारों तलबा मुफ्त दरसी कुतुब से महरूम हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि किताबें छापने से कबल असातिज़ा रहनुमाओं से मुशावरत लाजमी की जानी चाहिए थी। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि रवां साल किताबें डिमांड के मुताबिक पब्लिश की गई हैं। ईद सर पर आ गई, बोर्ड हुकाम को होश न आया। 8वीं जमात के इम्तहानी ड्यूटी के माह से लटक गए। नताइज जारी होने के 2 माह बाद भी असातिज़ा को अदायगियां ना हो सकी। ईद सर पर आ गई, बोर्ड हुकाम को होश न आया। 8वीं जमात की इम्तहानी ड्यूटी करने वाले ताहाल मुआवजे से महरूम है। टक्टा के तहत 8वीं जमात के इम्तहानात के मुआवजे ताहाल अदा न किए जा सके। सूबा भर में 27,000 से ज्यादा असातिज़ा ने इम्तहानी ड्यूटियां सर अंजाम दी थी। पंजाब भर में 5,000 इम्तहानी मराकज कायम किए गए थे। हुकूमत की जानिब से फ्री टीचर 4,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था। नताइज जारी होने के 2 माह बाद भी असातिज़ा अदायगियों के मंतज़र हैं। अदायगियों में ताखीर पर असातिज़ा में तशवीश और बेचैनी
बढ़ने लगी। गामी सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देने वाले सिविल डिफेंस रजाकार ईद से कबल माली मुश्किलात का शिकार हो गए। हजारों रजाकार तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद परेशान हैं। ईद उल अज़हा की तैयारियां भी मुतासिर हो गई हैं। रजाकारों का कहना है कि तनख्वाह न मिलने के बायस कुर्बानी और बच्चों के लिए नए कपड़ों की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। रजाकारों ने शिकवा किया कि उनके साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि सिविल डिफेंस लाहौर के पास अप्रैल तक का बजट मौजूद था। मजीद फंड्स के हुसूल के लिए डायरेक्टोरेट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को खत लिख दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ईद की तहसीलात के फौरी बाद तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। सुधरा पंजाब प्रोग्राम की तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी। वज़ीर इत्तलात व सकाफत असमा बुखारी और सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्टिविटीज़ हो या हमारे जो इदारे हैं उनकी एक्टिविटीज़ हो, आपने देख लिया कि आज पूरे शहर में जो पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें कई हमारे जो नापाक अज़ाइम रखने वाले जो दुश्मन अनासर हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। और इसकी बैक टू बैक सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 2 मीटिंग्स की हैं। एक उनकी फ्राइडे को मीटिंग हुई, मैराथन सेशन चला। एक कल संडे था, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ फौरी तौर पर डायरेक्शन आई कि बैठें और हम तकरीबन मगरिब से लेकर रात गए तक हम उस पर तमाम को हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बाकायदा तौर पे लोगों के लिए मुमकिन बनाएं कि हम सिक्योरिटी के साथ ही हमारे जो 3 दिन जो ईद उल ज़ुहा के हैं इनको हम बड़ी ईद पर अस्पतालों में तिबी सहूलियात पर इजलास। वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान की भी शिरकत। अस्पतालों की इमरजेंसी से इंडोर डॉक्टर्स के ड्यूटी जारी। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, IV फ्लूइड्स, वैक्सीन से यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर स्पेशलाइज अस्पतालों में तिबी सहूलियात की फराहमी बारे वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वफाकी बजट 2026-27 लाहौर चैम्बर की क़यादत ने सनत और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बजट तजावीज़ पेश कर दी। लाहौर चैम्बर में बजट तजावीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि आइंदा वफाकी बजट का हुज्म 17,500 अरब रुपए तक महदूद रखने की सिफारिश की गई है। FBR टैक्स हदफ में सिर्फ 4 से 5% इजाफा किया जाए। FBR का नया टैक्स हदफ 14,700 से 14,800 अरब रुपए तक रखा जाए। कस्टम्स ड्यूटी हदफ 1650 से 1660 अरब रुपए तक महदूद रखने की तजवीज़ है। सेल्स टैक्स हदफ ज्यादा से ज्यादा 4,950 से 4,980 अरब रुपए तक रखा जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 920 से 930 अरब रुपए तक महदूद रखने का मुतालबा किया। जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, जितनी भी टैक्स की रेशो कम कर सकती है, जो लोग टैक्स नेट में हैं उनको मेरे ख्याल में मिसाल बनाएं, निशान इबरत ना बनाएं। तो दिफाई बजट के हवाले से हमारी गुजारिश है, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त दुनिया में, और जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा पाकिस्तान ने जिस जमा मर्दी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत जो है, उस हवाले से भी एक तो अददी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी लास्ट ईयर जो हमारा बजट था $8 बिलियन के करीब दिफाई बजट, और उनका था $82 बिलियन। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त का तगाजा यह है कि इसमें भी 10% का इजाफा होना चाहिए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि इस साल लाहौर चैम्बर का स्लोगन एक ही है, हुकूमत बताए क्या वो मुल्क की सनत चलाना चाहती है। इंडस्ट्री चलाने का इरादा है तो फिर इस्लाहात करना होगी। टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट बढ़ाए। इस वक्त 36 डिपार्टमेंट जो है वो हमसे टैक्स वसूल करते हैं किसी न किसी सूरत में, जिसमें सोशल सिक्योरिटी है, EODI है, बला 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 बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको जो है वो क्लब किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से बिल्कुल ये मदमाना गुजारिश है कि किसी तरह भी इन सबको एक डिपार्टमेंट में क्लब कर दें, ताकि एक ही डिपार्टमेंट जाके लोगों से पूछे, बजाय इसके कि इंडस्ट्री 36 डिपार्टमेंट को जो है ना हर वक्त अपना जो है वो करती रहे। EFS के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जो है उसको रियल टाइम के ऊपर असेस किया जाए, बजाय इसके कि जब सारे के सारे 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर जो भी मिसयूज उसको कर सकते हैं कर लें और बाद में हम हाथ मलते रहें।
तो उसको रियल टाइम पे उसको चेक करें। साबिक सदर FPCCI मियां अंजम निसार ने कहा, हम पहले रो रहे हैं, बिजली की कीमत ज्यादा है, अब एक बार फिर महंगी बिजली के मुआहदे समझ से बालातर हैं, टैक्स का निजाम वसी होना चाहिए। कैमरामैन राना अजहर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। कि लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई कोऑर्डिनेटर अज़मा कारदार और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सदारत की। हुकाम ने मुहिम के दौरान हासिल होने वाले अहदाफ का जायजा लिया। इजलास के दौरान CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान न सिर्फ मुकर्ररा अहदाफ से ज़ायद कामयाबी हासिल की गई है, बल्कि शहर में मौजूद मेहमान बच्चों की वैक्सीनेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। ईद के दिनों में आम मुलाकात की इजाज़त। अपने प्यारों से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मुलाकाती कैंप जेल पहुंच गए। कैदियों के लिए जेलों में ईद के तीनों दिन खुसूसी मेन्यू भी तरतीब दे दिया गया। के पहले दिन नाश्ता के साथ हलवा, दोपहर और शाम को कोरमा और पुलाव फराहम किया जाएगा। ईद के दूसरे दिन मुखय्यर हजरात की मदद से कुर्बानी का गोश्त फराहम किया जाएगा। जेलों में मुलाकात के लिए आने वालों की लाजमी मुलाकात करवाई जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल का कहना है कि शहरी मुलाकात के लिए इंतजार से बचने के लिए ऑनलाइन ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट हासिल करें। ईद के दिनों में मुलाकात का रश 3 गुना ज्यादा हो जाता है, इसलिए मुलाकाती जेल अमला के साथ ताउन करें। हर मुलाकाती के फोन पर मुलाकात के इंदराज के लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए खुसूसी डेस्क कायम किया गया है। जो भी विजिटर आ रहा है, चाहे उसका दिन है या नहीं है, तो उनको आम मुलाकात की इजाज़त दी गई है। बगैर किसी वक्फे के लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं, उनके प्यारों से उन्हें मिलवा रहे हैं। और जहाँ तक ईद के मेन्यू का तल्लक है, तो ईद वाले दिन हमारा मेन्यू सुबह नाश्ते में हलवा और चाय, और दोपहर में कोरमा, और शाम को भी फिर कोरमा और उसके साथ बिरयानी होगी। और ईद के नेक्स्ट डे हम लोग जो है कुछ मुखय्यर हज़रात ने हमारे साथ रब्ता किया है, तो इंशाल्लाह ईद के नेक्स्ट डे कुर्बानी का गोश्त भी जो है ना, वो भी असीरान को पका के खिलाया जाएगा। ईद के पहले दिन मुलाकात और सामान जमा होगा, दूसरे और तीसरे दिन सिर्फ खाना जमा होगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स मुलाकात के अमल को खुद मॉनिटर करेंगे और मुलाकात शेड में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ अली साही, सिटी 42। IG पंजाब अब्दुल करीम से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए ड्रग्स एंड क्राइम के एडवाइज़र बराए क्रिमिनल जस्टिस और लीगल रिफॉर्म्स अरसलान मलिक की मुलाकात। IG पंजाब ने फाइनेंशियल क्राइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात से आगाह किया। UNODC पंजाब पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बामी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। फाइनेंशियल क्राइम के तदारुक के लिए बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान भर के लिए यकसा स्ट्रेटजी तश्कील देने पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी इदारों, सिविल सोसाइटी के मशावरत से साइबर क्राइम, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग समेत संगीन जराइम से निपटने के लिए यकसा तरीक़ाकार तय किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने जनरल बस अड्डा बदामी बाग और शेराकोट के निजी बस अड्डों का दौरा किया। ओवर चार्जिंग समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। CTO लाहौर जनरल बस अड्डा बदामी बाग पहुंचे, मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों किरायों का मुआयना किया। अब्दुल रहीम शरासी मुसाफिरों से मिले और ओवर चार्जिंग के हवाले से इस्तफसार किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शेराकोट के मुख्तलिफ निजी बस अड्डों का भी दौरा किया। अब्दुल रहीम शरासी ने तमाम बस अड्डों पर किरायानामा अवीज़ा करने, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग से गुरेज करने की हिदायत की। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा करते हुए 9 ज़ुल्हज के खुसूसी हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान दरबार बीबी पाक दामन पहुंचे। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली और दीगर मुतलका अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस ने 9 ज़ुल्हज के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के एक्सपो सेंटर में PHA के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीन के कौंसल जनरल सनयान ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, मंचाओ लबर, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, MD राजा मंसूर अहमद और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुईं।